if am is the twice the gm of two positive numbers a and b, then a is to b. am क्या होगा? a plus b by 2 gm root ab, ठीक है? Twice of gm, that implies a plus b equal to 4 root ab. Okay, then a is to b दिया गया. एक काम करो, just find out root a plus root b का whole square. Root a plus root b whole square is what? It is a plus b plus 4 root ab. Sorry, 2 root ab. So this became a plus b 4 6 root ab. Next find root a minus root b whole square, which is a plus b minus 2 root ab. That you can write 2 root ab. ठीक है? Now divide both these sets. So root ab cancelled. So root a plus root b upon root a minus root b became what? 3 root 3. Okay. Now use component on dividend. Use your numerator plus denominator upon numerator minus denominator both these sides. Replace what? Numerator plus denominator. You will get 2 root a. Root b cancel हो जाएगा. Numerator minus denominator. You will get 2 root b equal to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. तो a by b क्या होगा? root 3 plus 1 whole square upon root 3 minus 1 square. Okay. Otherwise you can rationalize here also. Rationalize करेंगे तो ये आएगा root 3 plus 1 का square upon 2, which is 4 plus 2 root 3 upon 2, that is 1 plus root 3. तो a plus b आ जाएगा 1 plus root 3 का square. ऐसा कुछ ऑप्शन है? अच्छा, इसके हिसाब से जाओ. इसके हिसाब से जाएंगे तो ये इधर रखो. You get 4 plus 2 root 3 upon 4 minus 2 root 3. 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन रख के, तो 2 plus root 3 upon 2 minus. तो D is the answer. ये दिखाई दे रहा है ना आपको?
Anything else? Do you have any other doubt? आपको भी बोला गया था करने के लिए, बुकलेट्स भी करने के लिए, बुकलेट. Okay. Can I rub? जन्मे ये आपको समझा? हाँ सर. Do you have any other doubt? नहीं नहीं सर. Yes. सर कोई ड्राइंग करना मतलब If x is the arithmetic mean of A and B, y is the geometric mean of B and C, where ABC are in GP, then find value of A by x plus B by C by y.
A square is done by joining midpoints of the sides of a given square. A third square is done inside the second, like same way, and the process is continued infinitely. If the side length of the first square is 16 units, then determine the sum of the areas of all squares.
ओके आपको ग्रुप में 5 क्वेश्चन डाला है, उसको आप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट वन कितनों को मिला?
और इसका आपको कैसे मिला 2? I got first one is the 2. Yes. Right. But why is the geometric mean? X is the arithmetic mean. So x equal to a plus b by 2. Arithmetic mean between a and b. And y is the geometric mean between b and c. So y square equal to bc. And abc are in gp. So you can write b square equal to sc. Then how you got a by x? अच्छा x के जगह वो डाल दिए, ठीक है. तो a by x plus b by y. A you can write x, you can write a plus b by 2 plus b by y. उसमें क्या किया? नहीं, c by y, not b by y. Y you can write root bc. ऐसे करके आप एलसीएम लिए. अच्छा, सर हम लोग 2a by a plus b को स्प्लिट कर इनवर्स करके स्प्लिट कर सकते हैं और फिर बायनोमियल.
सेकेंड वन नहीं हुआ क्या? स्क्वायर के अंदर स्क्वायर जो क्वेश्चन था, ये समझा? सेकेंड किसका बना? फर्स्ट वन क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दो. if x is the arithmetic mean between a and b and y the arithmetic mean between b and c, where a b c are in gp. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन किसी को आया? सेकंड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रहा है. यस, सेकंड नहीं आ रहा सर. नहीं आ रहा. ये समझ में आया ना? हाँ ना? सर. हाँ सर. सेकंड क्वेश्चन था आपका, दिस इज योर स्क्वायर, इसका मिड पॉइंट को सब ज्वाइन कर रहे हो. अगेन यू विल गेट वन स्क्वायर. फिर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, फिर आपको स्क्वायर मिलेगा. फिर इनका मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो, फिर स्क्वायर मिलेगा. ऐसे चलता रहेगा. ठीक है. लेट दिस इज द स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, लाइक दैट. ऐसे चल रहा है. जस्ट फर्स्ट स्क्वायर का साइड लेंथ इज द A1. एरिया क्या होगा? A1 का स्क्वायर होगा. A रखो, साइड लेंथ A. अब बताओ सेकंड जो स्क्वायर आ रहा है उसका साइड लेंथ कितना होगा? A/2. ये फर्स्ट का A होगा तो एरिया आ गया A स्क्वायर. ये कितना होगा? यस, A/2. A/2. नहीं A/2 नहीं होगा. A/√2. क्योंकि ये आपको राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देगा. और ये हो गया A/2, ये भी हुआ A/2, तो ये हो जाएगा A/2 का होल स्क्वायर प्लस A/2 स्क्वायर रूट ओवर. मतलब ये होगा A/√2. आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज साइड का √2 टाइम्स होता है. तो A/2 इंटू √2 होगा तो A/√2 आएगा. तो सेकंड मिला A/√2. तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा? उसका एरिया क्या होगा? A²/2. A²/2. थर्ड का साइड लेंथ क्या होगा? A/2. ये √2 में डिवाइड होता जाएगा, वही रेशियो में आ जाएगा. ये होगा A/2. ये क्या होगा? एरिया A²/4. फोर्थ क्या होगा?
A by 2 root 2. 2 रूट 2 ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 8 ऐसे चलता रहेगा। तो ये बोल रहा है कि इसका सम पूछ रहा है, एरिया का सम ऑफ एरियाज। तो सम ऑफ एरियाज कैसे आया? ये कौन सा सीरीज दे रहा है? जीपी ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बाय 8 ऐसे जीपी दे रहा है। तो नाउ यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन, तो यू विल गेट 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 क्यूब ऐसे चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ जीपी अप टू इंफिनिटी क्या होगा? a upon 1 minus r is the half, so you'll get 2a square। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आपका a क्या दिया गया था? 16 दिया गया था, तो आंसर कितना होगा? 256 into 2 512 square units। ये समझा? Yes, sir. ये क्यों नहीं बना था? Can I out? Yes. थर्ड क्वेश्चन क्या था? If x, y, z belongs to R plus, so that a raised to x is equal to b raised to y equal to c raised to z and ABC are in GP. Then y into x plus z upon 7xz. Okay. इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, मिला किसको? ये है आपको क्या मिला था? Sir, 2 by 7. 2/7। एक्स वाई जेड क्या आया? Sir, ऐसे स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं आई। नहीं वैल्यूज नहीं आएगा, मतलब एक्स वाई जेड कुछ तो कोई सीक्वेंस कुछ आया क्या? नहीं, सर 2xz इक्वल टू xy प्लस yz आया था। 2xz इक्वल टू xy प्लस yz, हाँ, तो ये आपको मिला ना? यही लेकर मैंने न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करा था। xyz आर इन जीपी, सॉरी ये जब आता है ना, देन xy आप xyz में डिवाइड कर दीजिए बोथ द साइड्स, यू विल गेट व्हाट? 2 by y equal to 1 by z plus 1 by x. हाँ सर। Okay, that means 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP. जी। तो x y z are in HP. तो ये x y z HP होगा. That implies 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP. Implies x y z
आर इन जीपी सॉरी एचपी। ठीक है, ये कभी आता है तो ऐसे होता है। अच्छा क्या किए पहले? सर a raised to x इक्वल टू b raised to y इक्वल टू c raised to z में log लिया, तो z log a इक्वल टू y log b, x log a इक्वल टू y log b इक्वल टू z log c, फिर b को रूट ए सी डाला। Let us take this is lambda. A raised to x equal to b raised to y equal to c raised to z equal to lambda. आज एबीसी आर इन जीपी दिया गया, देन बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, ये मेरे पास है। When a raised to x equal to lambda, then x क्या होगा? डेफिनेट लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो x का वैल्यू क्या होगा? log lambda बेस a, जो आप लॉगरिथम लिए थे वही मैं चेंज कर रहा हूँ। आप ऐसे किए थे ना, a raised to x। अच्छा आप ऐसे किए, बोथ साइड log लेके किए। हाँ सर। तो x log a इक्वल टू y log b, देन क्या किया? फिर b को रूट ए सी डाला। थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, इसमें आप ऐसे कर सकते हो। x log a ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, log a इक्वल टू a raised to x इक्वल टू लैम्डा। मैंने log बोथ दी साइड्स रखा, तो log a raised to x इक्वल टू log लैम्डा। ln भी आप कर सकते हो। log a raised to x क्या हो जाता है? x log a होगा इक्वल टू log लैम्डा, जो भी होगा दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मुझे log a क्या मिल जाएगा? log लैम्डा बाय x, तो ऐसे मैंने डायरेक्टली लिखा। सिमिलरली log b हो जाएगा log लैम्डा अपॉन y, एंड log c होगा log लैम्डा अपॉन z। और एक याद रखो, whenever ABC are in GP, then their log are in, if ABC are in GP, then इसमें log यूज करेंगे तो क्या आएगा? 2 log B इक्वल टू log A प्लस log C, हमारे log of B square इक्वल टू log of AC, that means यस सर। log A plus log C। तो log A means log A, log B, log C are in AP. तो if ABC are in GP, then their logarithm are in AP, ये होता है। तो these three are in AP implies what? Log lambda upon x, log lambda upon y, log lambda upon z are in AP implies what? 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP, क्योंकि log lambda कैंसिल हो जाएगा। That means 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP, means x y z are in HP, जो आपको मिला था। ठीक है, तो x y z जब HP होगा, y is called their mean, तो y you can write 2xz upon x plus z, ये हम निकाले थे। If x y z are in HP, then their mean y equal to 2xz upon x plus z, तो y into x plus z upon xz, y into x plus z upon xz became 2, तो इसके जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, तो आंसर हो जाएगा 2/7।
समझा ये? यस सर। आप ये मतलब ये फटाफट ये चीज लिख सकते हो, ये डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा मार्क करके रखो मतलब चीज को, व्हेन एबीसी आर इन जीपी देन देयर लॉग आर इन एपी। एक केस में भी ऐसे आ गया। तो 2/7 was the right answer. रब करो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? If A1, A2, A3 are three consecutive terms of a GP, whose common ratio is R. अच्छा, तो A1, A2, A3 are in GP with common ratio R. तो आप ये A रख सकते हो, ये AR रख सकते हो, AR स्क्वायर भी मान सकते हो। Find the set of values of R for which A3 मतलब AR square greater than 4A2 AR minus 3A। आपका आंसर क्या आया था? सर R-1 इंटू R-3 ग्रेटर देन 0 आ रहा था, तो मैंने आपको मैसेज किया था कि 1 to infinity की 3 to infinity। 3 to infinity क्या लिखे थे आप? नहीं सर, मेरे को डाउट था, मेरे को एक स्टेप तक आया था कि R-1 ब्रैकेट R-3 ग्रेटर देन 0। तो फिर तो क्या? तो फिर आंसर 1 to infinity की 3 to infinity। अच्छा, आप लोग सब वेविकर मेथड नहीं किए क्या? सर कौन सा मेथड? वेविकर मेथड नहीं सर। नहीं किए? नहीं। तो क्वाड्रेटिक किए? हाँ। तो उधर भी ये सब एप्लीकेशन था। तो वो तो हम बेसिक मैथ में पढ़ाते हैं ना, मतलब वेविकर मेथड। बाकी किसी को पता है? नहीं तो पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा। सपोज ठीक है, इसको बाद में करते हैं, मतलब वो पहले देखते हैं। x plus 1 into x minus 4 लेस देन इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन दिया जाएगा कि सॉल्व पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या आएगा आंसर? x plus 1 into x minus 4 लेस देन इक्वल 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। कैसे करोगे? -infinity to -1 union 4 to infinity। तो एक वैल्यू रखो मोर देन 4, आप बोल रहे हो कि 4 टू इंफिनिटी, एक मोर देन रखो, मतलब मोर देन 4 का वैल्यू रखो। लेट अस टेक 7, तो x की जगह 7 डालो। क्या तो दे? सर उल्टा होना चाहिए, 1 to infinity and -infinity to -4। 1 टू इंफिनिटी union -infinity to -4।
1 to infinity union minus infinity to 4. नहीं सर वो भी नहीं। तो सब कुछ आ गया, रियल नंबर पूरा हो गया। हाँ, तो वेविकर मेथड नहीं जानते हो तो फिर मतलब कैसे करते हो इस चीज को? अब मतलब आपका जनरल स्टैंडर्ड भी रूल लगाओगे, वेविकर मेथड में इमीडिएट होता है फटाफट ये चीज, कितने भी बड़ा फैक्टर्स कुछ भी होगा। बट आप सपोज यू डोंट नो दैट थिंग, मतलब जानते हो नहीं, तो फिर कैसे करते हो इसको? कैसे मतलब हाउ टू मैनिपुलेट दिस थिंग? नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लेस देन 0, क्या करोगे, कैसे होता है? सर एक ब्रैकेट को लेस देन 0, फिर नंबर लाइन और फिर दूसरे को, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ पे जो आ रहा है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मानोगे, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मानोगे, यही करते हो। तो टू केसेस यू आर टेकिंग। केस 1, x plus 1 greater than greater than equal 0 and x minus 4 less than equal 0. This is case 1. Implies x greater than equal to minus 1 and x less than equal to 4. So and मतलब intersection part. One saying minus 1 ये 4, one saying minus 1 से बड़ा है, other one saying 4 से कम है, बट दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन दोनों होना चाहिए, क्या रहेगा? -1 to 4. That implies x belongs to, x lies in between -1 से लेके 4, both closed. Okay. Case 2. Case 2, x plus 1 negative and x minus 4 positive. Implies x less than equal to -1 and x more than equal to 4. मतलब आपको ये मिला, ये -1 ये 4, वन सेइंग 4 से बड़ा है, अनदर वन सेइंग लेस देन इक्वल टू -1। तो क्या होगा? इंटरसेक्शन। वन सेइंग मोर देन इक्वल टू 4, अनदर वन सेइंग लेस देन इक्वल टू -1, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। दिस इज द नल सेट, कोई नहीं मिला। केस 1 और केस 2, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन सेट में, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ओके, तो ये केस 1 में आपको x मिला -1 से लेके 4, बोथ क्लोज। इंटरवल पता है ना? हाँ सर। -1 टू लेके 4 क्लोज। सेकंड वन मिला नल सेट, तो ये दोनों सेट का यूनियन क्या होगा? -1 to 4. तो फ्रॉम 1 and 2 आपका x बिलोंग्स टू -1 से लेके 4, यही होगा आपका आंसर। सपोज मैंने 4 फैक्टर्स दे दिया, 3 फैक्टर दे दिया, फिर क्या करोगे? सपोज मैंने 3 फैक्टर दे दिया, लेट अस टेक x plus 2, x minus 3, x plus 7 less than equal to 0। फिर क्या करोगे? फिर आपको केस लेना पड़ेगा 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर लेना पड़ेगा
तीनों नेगेटिव। इतने चार केसेस का फिर यूनियन पार्ट रखोगे, तो ये लेंथी मेथड होता है। हाँ, फिर 4 फैक्टर डाल दिया तो आप ऐसे ही मतलब उसको करते करते आपको आधा घंटा चला जाएगा। तो इसके लिए वेविकर मेथड यूज किया जाता है। इमीडिएट यू गेट योर आंसर। ओके, तो पहले जो किए थे हम उसको करेंगे। क्या था? x + 1 इंटू x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो just find out your mention your roots on your number line. This is your number line. Number line में roots को mention करो। मतलब root मतलब you have to make this factor as 0. तो -1 one root, another root is the 4. Arrange your roots on your number line. ठीक है? Now total real number divided into 3 parts. Total real number divided into 3 parts. आपका x ए साइड में हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर हो सकता है। योर x वैल्यू मे बी लेस देन इक्वल टू -1, मे बी -1 से लेके 4, मे बी 4 टू लेके 1। ठीक है, 4 से लेके इंफिनिटी तक। तो सपोज x इज हियर लेस देन -1, तो आपको क्या मिलता है? इसका साइन क्या होगा? If x value less than -1, तो x + 1 का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। तो इधर ये नेगेटिव मिला, ये क्या मिलेगा? x - 4। आपको ज्यादा मत सोचो, आपका x मैंने लेफ्ट साइड रखा मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव। तो आगे का वैल्यू को मैं माइनस करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, पीछे का वैल्यू को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मत सोचो कि x - 4 ज्यादा आप सोच रहे हो। आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे x रखा, ये इसका आगे का वैल्यू मतलब ये बड़ा वैल्यू, ये भी बड़ा वैल्यू, तो ये यहां से इसको माइनस कर रहा हूं, x -1 दैट टाइम यू विल गेट x + 1। ये जो दिया गया ना, ये दोनों का डिफरेंस ही दिया गया। सेकंड फैक्टर दिया गया x - 4, मतलब यहां से इसको माइनस कर रहा हूं, एक बड़ा वैल्यू को माइनस कर रहा हूं। ऑलवेज यू विल गेट नेगेटिव। लेफ्ट साइड के वैल्यू को माइनस करोगे यू विल गेट ग्रेटर देन 0, राइट साइड वैल्यू को माइनस करोगे यू विल गेट लेस देन 0। ठीक है, तो अभी ये हुआ नेगेटिव। x - 4 क्या होगा? x - 4 क्या होगा? yes हेलो, मतलब x - 4 क्या होगा? ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हुआ। सपोज x इनके बीच में है, समवेयर x इज देयर, तो x -1 क्या होगा? आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? सर मैं आपको पहले यही नंबर लाइन बता रही थी, हमें शायद बस ये नाम नहीं पता कि इसको वेविक्योर मेथड बोलते हैं। बट हम भी ऐसी ही नंबर लाइन लगा के करते हैं। बट फिर आपका आंसर क्यों, मतलब आप डिटरमिन क्यों करते हैं? सर 2 सेकंड, एक बार मैं आपको पिक्चर भेजती हूँ मैंने क्या किया है, शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, आप जो लिखे थे ना वो लिखे थे कि r - 1 इंटू r-3 ऐसा कुछ लिखे थे ग्रेटर देन 0। तो फिर आंसर क्या होगा? मतलब 3 टू इंफिनिटी कि 1 टू इंफिनिटी, वो चीज आपका कंफ्यूजन था। हाँ सर, अभी क्लियर हो गया, पर ये हमने किया हुआ है, शायद तब थोड़ा याद नहीं आया।
तो अभी वो नंबर लाइन बना के आ जाएगा, हम 2 सेकंड में आपको आंसर सब बताते हैं ठीक सब है, लोग। तो नहीं मैं इधर ही बता देता हूँ, आपका ये कंसेप्ट समझ लो। इन बिटवीन इसका रहेगा तो ए साइड के लिए पॉजिटिव होगा, ए साइड के लिए नेगेटिव होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। सपोज x इज हियर, तो x पॉजिटिव होगा। -1 दोनों पॉजिटिव मिलेगा, तो ये प्लस। तो वेविगर मेथड बोल रहा है कि यू विल गेट अल्टरनेटिव साइन। आप नंबर को, रूट्स को नंबर लाइन में रख दो, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव बना दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ऐसे ही आएगा। सपोज वन मोर फैक्टर, लेट अस टेक x प्लस 7 होता, तो आपको क्या मिलेगा, ये -7। तो ये क्या करोगे आप, एक्सट्रीम राइट से पकड़ के आओगे, ये 4 ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो आपको नेगेटिव चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -7 यूनियन ये -1 से लेके 4, ऐसे किया जाता है। तो इमीडिएट यू विल गेट योर आंसर। तो आपका जो था एक पार्ट तो गलत था, आप एक ही पार्ट निकाले थे, दूसरा पार्ट नहीं निकाले थे, देखा था मैंने। ठीक है, चलो अभी नाउ कम टू दैट क्वेश्चन। तो ए कैंसल हो जाएगा, implies what? Implies what? -∞ to 1 union 3 to infinity. Okay, but still it, this is not full answer. अब मुझे बताओ इसके आगे, मतलब ए कैंसिल कर दिया, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? r² - 4r + 3 greater than 0। r² greater than, मतलब ये trying to tell r² greater than 4r - 3. Is it right? Is it correct? हाँ सर, और ए भी लिख सकते हैं, a greater than 0, क्योंकि हमने एक काट दिया हर साइड। ये होगा when a greater than 0। आपको क्वेश्चन में था क्या a greater than 0? क्वेश्चन में मेंशन था क्या फर्स्ट टर्म विद द पॉजिटिव वैल्यू? नहीं सर। So you need to take two cases. This is the case 1. When a greater than 0, you are getting this thing. Suppose a less than 0 होगा, तो क्या होगा? इक्वल तो 0 नहीं हो पाएगा, अदरवाइज जीपी नहीं बनेगी, तो इक्वल 0 का चांस नहीं, बट आज a is not equal 0, but there is a chance to get greater than 0 or less than 0. If a greater than 0, you are getting this thing. If a less than 0, then क्या होगा? ax greater than ay implies what? Okay, so if ax greater than ay does not mean x greater than y. X greater than y only when a greater than 0. If a less than 0, x less than y हो जाएगा, इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा, क्योंकि आप कोई नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे, आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो when a less than 0, you will get r² less than 4r minus. So this is case 2. Now come to case 1. r² greater than 4r minus 3 means r² minus 4r plus 3 greater than 0 implies r minus 1 into r minus 3 greater than 0.
नाउ टेक योर क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 3, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ग्रेटर देन 0 के लिए आपका आंसर होगा r belongs to minus infinity to 1 union 3 to infinity, okay? And r क्या दिया गया था? r कुछ मेंशन था क्या? क्वेश्चन में नहीं सर। नहीं सर, तो कॉमन रेशियो वगैरह। r इज नॉट इक्वल टू 0 भी रखना पड़ेगा, 0 रहेगा तो फिर जीपी नहीं बन पाएगा, ठीक है? कभी कभी r ग्रेटर देन 0 दिया जाता है, if ग्रेटर देन 0 दिया जाएगा देन यू हैव टू कंसीडर 0 से लेके 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ऐसे रखना पड़ता है, ओके सर। ठीक है? इसमें और एक पॉइंट हट जाएगा, r इज नॉट इक्वल टू 0। केस 2 में सीधा इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा, r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 लेस देन 0, मतलब एक अंदर के वैल्यू मिलेगी, मींस r लाइज इन बिटवीन 1 से लेके 3। सो देयर आर टू आंसर्स, एक रहेगा व्हेनेवर a ग्रेटर देन 0 आपको ये आंसर मिल रहा है, व्हेन a लेस देन 0 आपको ये आंसर मिल रहा है, यस सर। बराबर? हाँ सर। नेक्स्ट क्या था? वो कुछ मिला किसी को? Sum of the square of 3 distinct real numbers which are in GP is a square. Let us take numbers are a, ar square. Sum of square of 3 distinct real numbers. Condition क्या रहेगा? When question given 3 distinct real numbers, condition क्या होना चाहिए? Yes. R is not equal to 1. Is not equal to plus minus 1. प्लस 1 हो नहीं पाएगा, माइनस 1 भी नहीं हो पाएगा, वो कंडीशन पहले आ जाना चाहिए। इफ r इक्वल टू 1, तीनों वैल्यू सेम हो जाएगा, r इक्वल टू माइनस 1, फर्स्ट एंड लास्ट भी सेम होगा, ठीक है? सो दैट टू कंडीशन मस्ट बी देयर, r इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड square sum equal to s square and sum is the x into s, find range of x square. Okay, according your question, a square plus a square r square plus a square r raised to 4 equal to s square, and their sum a plus ar plus ar square equal to x into s. तो रेंज ऑफ ये 1 ये 2, मुझे x स्क्वायर का रेंज चाहिए। किसी को मिला तो बताओ, इसका आपको मिला था? सर मेरे को एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आई थी आर के टर्म्स में, आंसर नहीं आया। क्या क्या मिला था x स्क्वायर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। ओके, फिर क्या करोगे? सर वो ही नहीं पता, इसलिए आंसर नहीं। ठीक है, मैं कर रहा हूं 2 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वन, सेकंड का स्क्वायर कर देता हूं। पहले a कॉमन ले लेंगे, तो a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं।
इक्वल टू होगा x स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन सेकंड में a स्क्वायर कॉमन ले जाता हूं 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ टू 4 ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर अपॉन इक्वेशन 1 सो दैट मेरा a टर्म कैंसिल होगा, a स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, मुझे x स्क्वायर मिल जाता है। इसका फॉर्मूला आपको पता है 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज़ टू 4 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर ओके माइनस आर स्क्वायर। फिर बाद में क्या होगा? मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, हाँ जो बताए वो राइट है, वो क्या होता है बताओ? उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर से एक स्क्वायर कटेगा। This is the 1 plus r square into 1 minus r plus r square. आप जो बताए वही राइट था। ये याद रखो, ये प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फैक्टर। आप क्या होता है 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना, अब डालो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इक्वल इनटू a माइनस बी, ठीक है। तो अब इसके जगह ये लिखेंगे तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा क्या? न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का रेंज कितना हो सकता है, कैसे फाइंड करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड क्वाड्रेटिक ऑफ आर बनाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक ऑफ आर बनाओ। तो ये साइड में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लेफ्ट साइड सबको ले रहा हूं, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। व्हाट आई डिड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको लेफ्ट साइड ले लिया, यू विल गेट दिस। This is the quadratic of r square. r क्या था? r given real, ये quadratic of r मिला, आज r real, तो क्या होना चाहिए? Your discriminant must be greater than equal to 0. Discriminant must be greater than equal to 0. Okay. तो डालो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको क्या कर देता हूं, मेकिंग दिस वन एज 4 की जगह 2 का होल स्क्वायर कर दिया। तो once again I am using a plus b, a square minus b square, a plus b into a minus b. What is a plus b? 2 plus 1 3 x square minus 2x square, तो minus x square, a plus b into a minus b, a minus b करेंगे तो 1 minus of 2 minus 1, 3x square minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू। बट हम जब वेविकर मेथड यूज करते हैं ना, सब x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करते हैं, तो इसलिए एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो बोथ दी साइड्स,
If you multiply negative both the sides, you will get x square minus 3 into 1 minus 3x square minus 1 लेस देन इक्वल 0. सिर्फ यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी आपका चेंज होगा. तो x स्क्वायर का रूट क्या मिला? 1/3 एंड 3. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. तो लेस देन इक्वल 0 मतलब इसके अंदर होना चाहिए. ठीक है. तो आपका x स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 1/3 टू लेके 3. ये समझा? हाँ सर. कुछ हम मिस कर दिए क्या? क्या सर? कहीं पे कुछ हम कुछ कंडीशन छोड़ दिए क्या? नहीं. कोई जगह हम कुछ कंसिडर नहीं किए क्या? मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आंसर गलत होगा, तो आप ढूंढिए गलत कहाँ पे किए हम. आपको चेक करना है कि where I did mistake. If I write answer as x square belongs to 1/3 to 3, then आंसर रॉन्ग होगा. आप चेक कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है. पहले एक बार लिख दीजिए, फिर बताइए. सर 1 हटाना है क्योंकि ये फिर आपको हमारा जो कंडीशन था कि r इज नॉट इक्वल टू +1 और -1, वो दोनों नहीं होगा. वो चीज को हम इधर अभी तक कंसीडर नहीं किए. तो हमें आप एक बार लिख दीजिए, फिर मैं ये रब करूं. हाँ सर. यहाँ पे जो x स्क्वायर मिला था 1 plus r square upon 1 minus r plus r square. If r equal to 1, आपको x स्क्वायर क्या मिल रहा है? r की जगह 1 डालो. 1 plus 1 3/2 upon 1, तो 3. 3. बट एक्चुअली आपका आज r is not equal to 1, तो x square is not equal to 3. r minus 1 होगा तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1/3, क्योंकि ये 0 होगा, ये 1, ये हो जाएगा 3. r is not equal to -1 मतलब x square is not equal to 1/3. बट यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट डाला मतलब दोनों इंक्लूडेड है, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा? सो एक कंडीशन इसमें यूज होगा. हेंस आपका x स्क्वायर जो रहेगा बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3, बट ओपन, नॉट क्लोज.
Yes, sir. If ABCD are in HP, then FB plus BC plus CD upon AD is equal to what? Hello, Akshay.
ओके, और किसी को कुछ मिला? मुझे बहुत अजीब आ रहा है। ABCD आर इन HP। कभी भी क्वेश्चन आपको HP दिया जाएगा, इमीडिएट टेक द रेसिप्रोकल 1 by A, 1 by B, 1 by C, 1 by D आर इन AP। ठीक है, तो 1 by B minus 1 by A, you can take some constant K, common difference, let us take K. Okay. Similarly, 1 by C minus 1 by B also you can write same K. Also you can write 1 by D minus 1 by C. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा AB BC CD, इस हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? A minus B upon AB equal to K। तो AB क्या हो जाएगा? A minus B upon K। Like that, from here you will get BC equal to B minus C upon K and CD equal to C minus D upon K। Now come to your question. Question दिया गया कि AB plus BC plus CD upon AD। AB की जगह लिख दो A minus B upon K plus B minus C upon K plus C minus D upon K upon AD। बराबर, तो B cancelled, C cancelled, what you got? A minus D upon K into AD। That you can write, इसको divide करेंगे, you will get 1 by K take outside, then A upon AD, 1 by D minus 1 by A। What is 1 by D minus 1 by A? 1 by D minus 1 by A कितना होगा? ये AP में है, कॉमन डिफरेंस को मैंने K रखा, तो 1 by D minus 1 by A कितना होगा? ठीक है, ये डिफरेंस K, ये डिफरेंस K, ये डिफरेंस K, तो 1 by D minus 1 by A become 3K upon K। Answer in the is that clear? सर कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं A B C D के जगह, मतलब वो जो 4 टर्म्स देते होते हैं। कर सकते हो, एग्जाम के लिए कर सकते हो, बट जब प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसा मत करो। ओके सेकंड मिला कुछ? सर मैंने इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट करके देखा और भी अजीब आ रहा है। तो अच्छा, फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूट किए थे, 3 नहीं मिला था। हाँ नहीं मिला था, मतलब ऐसे कैसे होगा? बहुत मतलब लंबा जा रहा था। आपको सब्स्टिट्यूट मतलब आप एक HP सीरीज ले रहे हो ना? हाँ, लेने के बाद फिर नहीं होना चाहिए था, एग्जैक्ट मिल जाना चाहिए था। कुछ कैलकुलेशन में होगा। और सेकंड आंसर किसको मिला? मनीषका? सर y इक्वल टू वो HP वाला फॉर्मूला लगा AP के टर्म में 2xz अपॉन x प्लस z, तो मैंने log लिया तो मेरे को log x प्लस z तो आया, बट बाकी की टर्म्स मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा आ नहीं रहा। ठीक है, ये रॉक करो। हाँ सर।
आज एक्स वाई जेड आर इन एचपी, देन वाई क्या होता है 2xz अपॉन x प्लस जेड। मैं इसको अभी निकाल रहा हूं ln of x minus y plus z, you can write ln of x minus x plus z minus y, y की जगह 2xz अपॉन x plus z, नहीं 2y था तो ये 4 हो जाएगा, which is ln of एलसीएम हो गया x plus z plus x plus z, x plus z का स्क्वायर माइनस 4xz 4xz अपॉन x plus z। तो a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab, a plus b होल स्क्वायर माइनस 4ab कितना होता है a माइनस b का स्क्वायर। अब log का प्रॉपर्टीज डालो, log m by n ये हो जाएगा ln x माइनस z का स्क्वायर माइनस ln of x plus z, that you can write twice of ln x minus z, क्योंकि x greater than z दिया गया है तो x minus z होगा। सपोज x लेस देन z होता तो z minus x आपको लिखना पड़ता, माइनस ln of x plus z। अब डाल दो, क्या मिला ln x plus z, इसकी जगह लिखेंगे 2 ln of x minus z minus of ln x plus z upon ln of x minus z, these two cancelled, then after ये cancel होगा, answer is समझाइए। सर मैंने सब्स्टिट्यूट करके मैंने आपको सब वैल्यू भेजा, सॉरी मैंने सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू भेजा है सर। भेजे ना, ये क्या b प्लस 2 अपॉन 2 b रूट a, ये क्या है तो वो नहीं सर, उसके नीचे a माइनस d a प्लस d, अच्छा मतलब x को आप a माइनस d माने, हाँ सर, तो 1 by a minus d, हाँ ओके वन मतलब आप एपी सीरीज को रखे 1 बाय मतलब a माइनस d a प्लस d, हाँ सर, उसका रेसिप्रोकल रखे hp, तो hp की जगह x की जगह 1 अपॉन a माइनस d, देन 1 by a 1 plus d, ओके
तो क्या हुआ, नहीं आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा पहले ये लिख लो, फिर देखते हैं क्या। ओके सर। नीचे 2D मिलेगा, आप 2A लिखे। कहने रहो, फिर आपके हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ। मतलब मिस्टेक तो है आपका इधर। रब करो। हाँ सर। तो आप x को माने 1/a माइनस डी, y को माने 1/a, z को मान लिए 1/a प्लस b। ओके चलेगा। तो ln x प्लस जेड, x प्लस जेड होगा 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ln x प्लस जेड माइनस 2y, 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2/a। ओके, so you can take 2 outside। तो ये कितना हो जाएगा? If you simplify this one, you will get 2a, मतलब 2 take outside, then a square minus a square plus d square, तो upon ln x minus z, x minus z होगा 2d x minus z, ये आपका आएगा 2d upon a square minus d square, not 2a। आप 2a लिखे उधर। इसका मैं देखता हूँ कैलकुलेशन, which is ln 2a upon a square minus d square plus ln ये हो जाएगा 2d square upon a square minus d square into a, all divided by ln 2d upon a square minus d square। ठीक है, log m plus log n, log mn, log mn करेंगे तो क्या आएगा? ये कैंसिल होगा, एक a कैंसिल होगा, 2 into 2 4 d square upon a square minus d square whole square। ओके, हाँ हो गया ना? आया, ये मिला आपको बराबर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो log m plus log n, log mn, तो a कैंसिल होगा, 2 into 2 4 d square upon a minus d whole square into a square minus d square, मतलब a square minus d square का whole square upon ln 2d upon a square minus d square। अब इसको मैं कर सकता हूँ 2d का भी होल स्क्वायर, 4d स्क्वायर यू कैन राइट 2d होल स्क्वायर। हाँ सर। तो ये 2 बाहर ले सकते हो, तो 2 into ln 2d upon a square minus d square upon log 2d upon a square minus d square। तो ये कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। ओके सर। लास्ट वन मिला? हाँ सर, समझ में आ गया। नहीं, और एक क्वेश्चन दिया था ना, सम ऑफ 2। हाँ सर। क्या मिला?
n plus 1 n plus 2 by 3. Find sum of product of first n natural numbers when taken two at a time. N into N plus 1 into n plus 2 by 3. one second. N into n plus 1 into n plus 2 by 3. Okay. Anything else? तो सपोज 1 2 3 4 दिया गया, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका क्या होगा? One into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4. 1 into 2 2 into 3 हाँ plus 3 into 4. नहीं, it's wrong. Sum of two elements. Sum of two मतलब 1 2 plus 1 3 plus 1 4 then 2 3 then 2 4 then 3 4. ये एक्चुअली क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है? टेकन टू एट ए टाइम, तो आपको 4 से कोई 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा. एनी 2 फ्रॉम 4 इन हाउ मेनी वेज? एनी 2 फ्रॉम 4 डिफरेंट थिंग्स. कितने वे में होता है? 4C2, 4 से आपको 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा. 4C2 दैट इज 6 डिफरेंट वेज. तो आपका जो आया था 3 डिफरेंट वेज. ये देखो 6 1 2 3 4 5. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ ए बी, मतलब दो टर्म का सम. समेशन ऑफ ए बी इज व्हाट? पता है? समेशन ऑफ ए बी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ए का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन. ये मेक इट नोट. इसको बोलते हैं दो का सम. समेशन ऑफ ए बी होता है समेशन ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2. ये कहां से मिला? आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. कैन आई राइट समेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ab? समेशन ऑफ ab आपको एक ही टर्म मिलेगा क्योंकि 2 ही था. यस सर. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. This one also you can write summation of a square plus twice summation of ab. इसमें 3 टर्म्स आता है क्योंकि आउट ऑफ 3 you have to select 2. 3C2 3 वेज. एक ab होगा, एक ac होगा, एक bc होगा. a प्लस b प्लस c प्लस d इसका स्क्वायर फॉर्मूला वही होता है समेशन ऑफ a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ab. ये irrespective any number of terms. मतलब if you take a1 plus a2 plus a3 and so on up to an square, आपको मिलेगा summation of a1 square plus twice summation of a1 a2. इसको बोलते हैं दो का सम. So this one you can write summation of a का square
एक एक का सम का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर का सम प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ए बी। तो समेशन ऑफ ए बी यू कैन राइट ये दोनों का डिफरेंस बाय 2। सो दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या है, आप n नेचुरल नंबर ले रहे हो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दो दो का सम, मतलब आपका क्वेश्चन दिया गया कि समेशन ऑफ 1 इंटू 2 क्या होगा, समेशन ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ n का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, समेशन ऑफ n का स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर मतलब n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 बाई 2। तो कॉमन जाएगा n इंटू n प्लस 1 कॉमन 4 6 का एलसीएम 12 ये 2 24 बाहर आया, इसमें बचा n इंटू n प्लस 1 इंटू 3 क्योंकि ये 12 हम लिए थे तो इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 इंटू 2n प्लस 1 which is n into n plus 1 ये आपका 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n माइनस n सॉरी प्लस 3n माइनस 4n माइनस n माइनस 2 अपॉन 24। ये फैक्टराइज हो जाएगा दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस n माइनस 2 मतलब n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1। नो मल्टीप्लिकेशन 6 गलत लिखा ना 2n तो n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। ठीक है अपॉन 24। सो दिस इज द आंसर। और आप चाहो तो ये n स्क्वायर माइनस 1 बना सकते हो इंटू 3n मत रखो ऐसे। सो दिस इज द आंसर, ये नहीं होगा। ये समझ में आया? हाँ सर। मनीषा आप क्या किए थे इसको? सर वही जो मैंने आपको बोला था 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 तो उस तरीके से गलत है। n को आप कैसे फिर ले रहे हो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 ऐसे करोगे तो फिर कैसे ले रहे हो आप? तो सर मेरी nth टर्म n इंटू n प्लस 1 आई थी और मैंने उसका समेशन किया था। अच्छा ठीक। तो आप लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो गया। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा कि नहीं? सर हम लोग डिस्कस करके मतलब आप लोग का क्या 11th का कुछ नहीं हुआ है ऐसा कुछ है? और नहीं सर रिवाइज करना था आई थिंक। ठीक है तो बाकी आप होमवर्क बुकलेट से ही करोगे, बुकलेट पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया करो। ठीक है हाँ सर। आज मैं डाल दूंगा कंप्लीशन मतलब ये में। ओके सर। ठीक है एनीथिंग एल्स? नो सर।
थैंक यू। सर नेक्स्ट Thank you, टॉपिक sir. प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं? क्या? नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं? हाँ सर। नहीं नहीं, मैं तो ले सकता हूँ, बट दूसरे बैच में नहीं होगा तो फिर आपको एक साथ चलेगा ना। दूसरे बैच में हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर, नहीं सर हुआ है। उनका नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं हुआ है, मतलब फिर एक साथ आपका चलेगा। हाँ सर। तो वेक्टर 3D के बाद मतलब वेक्टर तो हो गया, 3D के बाद ही जो डिसाइड होगा। ओके। आप लोग का कुछ अलग था क्या? मतलब ये चैप्टर करना है, रिवाइज करना है, क्या था कुछ? कितने चैप्टर्स आप दिए थे? सर हमने सर को एक लिस्ट दी थी पूरी, तो उसमें सबको जो भी टॉपिक्स चाहिए थे, तो शायद ये टॉपिक कॉमन था। तो नेक्स्ट टॉपिक शायद सर आपको बताएंगे या सर हमसे फिर से पूछेंगे, पता नहीं। अच्छा ठीक। सौरभ सर कुछ ले रहे हैं क्या, मतलब ये रिवीजन? सौरभ नहीं, सौरभ सर रिवीजन नहीं ले रहे हो, नॉर्मल मेन क्लास जो है वो। आपका उधर ये फंक्शन एंड आईटीएफ ऐसा कुछ चल रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।